السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کے ظالم اور جابر بادشاہ جالوت اور ایک غریب لڑکے طالوت کا ہے۔ وہ غریب طالوت بادشاہ کیسے بنا؟ وہ صندوق کیا تھا کہ جس جنگ میں بھی اس کو لے کر جاتے فتح یاب ہوتے؟ وہ صندوق اتنا متبرک اور مقدس کیوں تھا؟ زیادہ پانی پیتے اور زیادہ پیاس لگتی۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت بادشاہ کی موت کیسے ہوئی؟ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ اس کو سوشل میڈیا پر شیئر لازمی کر دیں۔ شکریہ۔ دوستو، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے، پھر آپ نے تورات کی تعلیم بنی اسرائیل کو دی، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی وصال فرما گئے۔ دوسرے انبیاء کرام آتے رہے، بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، نبیوں کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ جب ان کی نافرمانی اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت بادشاہ جالوت کو حاکم بنا دیا، جس نے بنی اسرائیل کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ یہ جالوت بادشاہ کون تھا؟ یہ ایک کافر تھا اور فرعون کی طرح ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بھی بنی اسرائیل پر ویسے ہی ظلم و ستم شروع کر دیے جیسے فرعون بنی اسرائیل پر کرتا تھا۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم و ستم پر ہمیشہ کڑتے تھے اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان میں کسی نبی کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور اپنے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام کو ان میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ ایک دن بنی اسرائیل سیدنا شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے شموئیل، آپ کو تو معلوم ہے کہ دشمن نے ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے اور ہم پر ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر ایسا بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم جالوت سے مقابلہ کر سکیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ سیدنا شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر تم نے جہاد نہیں کیا تو پھر؟ بنی اسرائیل نے فوراً کہا، حضرت ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم ہر حال میں کفار سے لڑیں گے، اور بھلا ہم کیوں نہ لڑیں ان ظالموں نے جنہوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا، ہمارے بچوں کو ہم سے دور کر دیا۔ سیدنا شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اگلے دن آنے کا کہا۔ دوسرے دن بنی اسرائیل سیدنا شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب تو یہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے، کہنے لگے، اے شموئیل، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو غریب آدمی ہے، ہم اسے کیسے بادشاہ مان لیں؟ سیدنا شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ منتخب کیا ہے۔ یہ طالوت کون تھا؟ طالوت ایک غریب آدمی تھا، مگر طاقت، علم اور عقل میں دوسرے لوگوں سے بڑھ کر تھا، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ بہادر اور جنگجو بھی تھا، جنگ لڑنا جانتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل اڑ گئے اور ضد کرنے لگے کہ یہ بھلا ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھے تو ہم ہیں، مالدار بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا تعلق قوم کے سرداروں میں ہوتا ہے، لہٰذا بادشاہ ہم کو ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل اپنے نبیوں سے حجت بہت کیا کرتے تھے، کہنے لگے، طالوت کو ہم بادشاہ اس وقت مانیں گے جب اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس آئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ بات ختم ہو گئی، مگر یہ لوگ ایسے ہی تھے، ضد، سرکشی ان کی عادت بن چکی تھی۔ سیدنا شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہارے پاس وہ مقدس اور متبرک صندوق واپس بھیج دے گا جس کی برکت سے تم لوگوں کو جنگوں میں فتح ملتی ہے اور تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ صندوق کیا تھا اور اس صندوق کے اندر کیا تھا؟ اور یہ صندوق اتنا متبرک اور مقدس کیوں تھا؟ دوستو، یہ صندوق شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر سونے کی چادر چڑھی ہوئی تھی۔ اس صندوق کے اندر انبیاء کرام کے تبرکات، ان کے مکانات کی بھی تصویریں تھیں۔
और उस संदूक के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के दौलत कदे की तस्वीर एक सुर्ख याकूत में थी। यह संदूक आदम अलैहिस्सलाम से तमाम अंबिया किराम के पास मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और आप उसमें अपना खास सामान भी रखा करते थे। उसमें तौरात शरीफ की तख्तियाँ भी मौजूद थीं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उसमें अपने कपड़े और नालैन मुबारक रखा करते। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और उनका आसा भी उस संदूक में मौजूद था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जंगों में उस संदूक को आगे रखते और उसकी बरकत से फतह हासिल किया करते थे। यह संदूक उस वक्त से बनी इसराइल के पास मौजूद था, लेकिन जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो एक और जालिम कौम अमालका उन पर मुसल्लत हो गई और वो बनी इसराइल से ये ताबूत छीन कर अपने साथ ले गई। जब बनी इसराइल ने सुना कि हमको ये संदूक वापस मिल जाएगा तो खुश हो गए और उनको यकीन हो गया कि अब हम दोबारा फतह याब हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने प्यारों की बरकत से, उनके वसीले से, बल्कि प्यारों की इस्तेमाल की हुई चीज़ों की बरकत से भी फतह अता फरमाता है। खैर, तो बनी इसराइल बड़ी बेसब्री से उस संदूक का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ कौम अमालका वो संदूक उठा तो लाए, लेकिन उन्होंने उसकी बेहुरमती की और उसको कूड़े खाने में डाल दिया। उस बेहुरमती की सजा उनको ये मिली कि जो कोई भी उस पर कूड़ा फेंकता या किसी भी तरह उसकी बेहुरमती करता, वो किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाता। इस तरह कौम अमालका की 5 बस्तियां तबाह हो गईं। तब उन्हें यकीन हो गया कि ये मुसीबतें उस ताबूत की वजह से उन पर आ रही हैं, लिहाजा उन्होंने उस ताबूत को बैलगाड़ी में रखा और बनी इसराइल की तरफ उस बैलगाड़ी को हाँक दिया। फरिश्ते उस बैलगाड़ी को हाँकते हुए तालूत के पास ले गए। बनी इसराइल ने जब ताबूत को देखा तो वो खुश हो गए और सब ने तालूत को बादशाह मान लिया। फिर तालूत ने जालूत से मुकाबला के लिए अपना लश्कर तैयार किया और यह ऐलान कराया कि मेरे साथ सिर्फ नौजवान जाएंगे, बूढ़े हजरात और वो लोग जो तिजारती कामों में मसरूफ हों या मकानात वगैरह की तामीर कर रहे हों, मेरे साथ जहाद के लिए ना जाएं। चुनाचे आपने सिर्फ ऐसे ही लोगों को अपनी फौज में शामिल किया जो फारगल बाल हों, ताकि जहाद में साबित कदम रह सकें। जब ये लश्कर जहाद के लिए रवाना होने लगा तो सख्त गर्मियों के दिन थे। तालूत ने अपने लश्कर से कहा कि आगे एक नहर आ रही है जिससे अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेगा, लिहाजा जब वो नहर पर पहुंचे तो सिर्फ एक चुल्लू पानी पिएं, इससे ज्यादा हरगिज ना पिएं। अब जब बनी इसराइल उस नहर के किनारे पहुंचे तो सवाए चंद अफराद के सब ने पेट भरकर पानी पिया, और हुआ ये कि जिन्होंने एक चुल्लू पानी पिया अल्लाह ताला ने उनकी प्यास बुझा दी, और जिन्होंने पेट भरकर पिया उनकी प्यास खत्म हुई। उनके होंठ काले हो गए और पेट फूल गए और ये लोग वहीं रह गए या वापस लौट गए। खैर, जब ये चंद लोग जिन्होंने चुल्लू भर पानी पिया था जालूत के मुकाबले पर मैदान में आए तो उन्होंने देखा कि जालूत की फौज तो बहुत बड़ी है और हम तो गिनती के लोग हैं। तो इस वाक़े को कुरान करीम ने यूं बयान फरमाया है, फिर जब तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ, बोला बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जो उसका पानी पिए वो मेरा नहीं और जो ना पिए वो मेरा है, मगर वो जो एक चुल्लू अपने हाथ से ले ले तो सब ने उससे पिया, मगर थोड़ों ने। फिर जब तालूत और उसके साथ के मुसलमान नहर के पार गए, बोले हम में आज ताकत नहीं। बोले वो जिन्हें अल्लाह उसे मिलने का यकीन था कि बारहा कम जमात गालिब आई है ज्यादा घरों पर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह साबरों के साथ है। उनके नेक लोगों ने कहा कि असल बात अल्लाह की ताईद और नुसरत की है। वो जिस गिरोह के साथ हों वो अगरचे तादाद में कम हो, मगर कामयाब और फाते वही रहता है। लिहाजा अब ये बातिल कुव्वत से लड़ने की तैयारी करने लगे और ये दुआ की कि ए अल्लाह हमें सब्र की तौफीक अता फरमा और हमें साबित कदम रख, काफरों पर हमें गलबा दे। अब ये दोनों लश्कर आमने सामने आए। जालूत ने आकर ललकारा, कौन है जो मुझसे मुकाबला करे। जालूत की करख आवाज सुनकर सब लोग खौफजदा हो गए, क्योंकि जालूत बड़ा सख्त और जाबर था, अकेले ही बड़े बड़े लश्करों को भगा देता था। जब तालूत ने जालूत की ललकार सुनी तो कहा कि कौन है जो जालूत को कत्ल करे। जो भी जालूत को कत्ल करेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और आधी सल्तनत भी दूंगा।
सब खामोश रहे। लेकिन एक नौजवान जिनका नाम दाऊद था और आप अभी कम सन ही थे, आप लश्कर की सफों से निकलकर बाहर आए। तालूत ने आपको घोड़ा दिया और जरा पहनाई और हथियार देकर रवाना किया। आप थोड़ी दूर गए और वापस लौट आए और तालूत को दिए हुए हथियार वापस कर दिए और कहने लगे कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए, तो इन हथियारों की जरूरत नहीं। जालूत ने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वापस जाते देखा तो अपने लश्करियों से कहने लगा कि ये मुझसे डर गया है, देखा मेरी हैबत कैसी है। दूसरी तरफ सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना गोबन हाथ में लिया और जालूत के मुकाबले पर आ गए। दोस्तों, गोबन क्या होता है? गोबन गुलेल टाइप की एक चीज होती है जिसमें पत्थर को रख कर गमाते हैं और दुश्मन पर फेंक देते हैं, और आपको गोबन चलाने में महारत हासिल थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना गोबन लिया और जालूत के मुकाबले पर निकल आए। रस्ते में 3 पत्थरों ने आपको आवाज दी कि हमें उठा लो, जालूत की मौत हम में है। चुनाचे आपने वो पत्थर उठा लिए। जालूत ने देखा कि ये बच्चा तो हथियार भी उतार कर आ गया और घोड़ा भी छोड़ दिया, उसने जरा भी उतार दी। जालूत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐ बच्चे चला जा, ये मैदान जंग है, कोई खेल का मैदान नहीं है जहां तुम खेलने आ गए हो। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अगरचे कम सिन थे, लेकिन जुर्रत और बहादुरी बहुत थी। कहने लगे, मैं तो लड़ने के लिए आया हूं, मुकाबला करो। जालूत फिर हंसने लगा, कहने लगा, तुम हाथ में 3 पत्थर लिए ऐसे आ रहे हो जैसे किसी कुत्ते को मारने आए हो। ये मैदान जंग है, यहाँ तलवार का काम है, तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन हो गए हो? आपने कहा, जालूत ज्यादा बातें न करो, तू कुत्ते से भी बदतर है और अनकरीब तेरा गोश्त चील कौवे खाएंगे। जालूत ने जब दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी और जुर्रत देखी तो खौफजदा होकर कहने लगा कि मुझे तेरी कमसिनी पर तरस आता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बातें करने के बजाय मुकाबले पर आ, मैं तुझ पर वार करता हूं, संभाल मेरे वार को। जालूत ये सुनकर गुस्से में आ गया और तलवार लेकर आप पर हमले के लिए दौड़ा। आपने अपने गोबन में एक पत्थर रखकर जो उसे मारा तो पत्थर सीधा जालूत के सीने में लगा और उसके सीने को फाड़ते हुए पीछे उसके 3 सिपाहियों को भी हलाक कर दिया। जब जालूत के लश्करों ने देखा कि जालूत मर गया तो वो डर कर भागने लगे। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत को घसीटते हुए लाए और तालूत के कदमों में लाकर डाल दिया। इसके बाद तालूत ने लश्कर को हुक्म दिया कि जालूत के लश्कर को कत्ल कर डालो। लिहाजा जालूत के लश्कर का कत्ले आम होने लगा और ये काफिर भागने लगे। अल्लाह ताला ने तालूत के लश्कर को फतह अता की और तालूत ने अपने वादे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से करवा दी और अपनी आधी सल्तनत भी आपको दे दी। कुछ ही अरसे में बनी इसराइल आपसे मोहब्बत करने लगे। आपकी हिकमत अमली और हुकूमत चलाने से वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और तालूत की मौत के बाद आप सारी सल्तनत के बादशाह बन गए। दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।